We are now going to start with practice set 2.1 and we are going to study Pythagoras triplet. Pythagoras triplet means that they will give you three values in a bracket and they will tell you prove or find out, identify whether it's a Pythagoras triplet. That means whether these three sides are the sides of a right angle triangle. Remember I told you, out of the three sides, the longest side will be the hypotenuse and other two sides will be base and height. We have to only see that the biggest value, square, is equal to sum of the square of the next two other two small values. If it is true, we can say it's a Pythagoras triplet. If it is not true, then it is not a Pythagoras triplet. Let us start. Solution 1. See 3, 5 and 4. So what is 5 square? 5 square is 25. This is first equation. What is 3 square plus 4 square? 16, sorry. 3 square is 9 plus 16, that is 25. This is second. Therefore, from 1 and 2, we get 5 square equal to 3 square plus 4 square. Therefore, by converse of Pythagoras theorem, we can see that 5, 3 and 4, you can say that, see the shortcut, 3, 5, 4 is a Pythagoras triplet. Then go for second again. So on, continue. We have to continue and show next question, which is solution, this one. So go for 12. What is 12 square? 144. Call this equation. Next is what is 4 square plus 9 square? 4 square is 64. 9 square is 81. What it comes to, see, 9 9 is 81, 4 4s are 16. 4 square is 16. So this comes to 97. From 1 and 2, 12 square is not equal to 4 square plus 9 square. Therefore, 4, 9, 12 is not Pythagoras triplet. Go for solution 3. Five, 12, 13. Biggest side is 13. So the biggest value square is 169. And then some of the other two small values, some of the squares. So 5 square plus 12 square. That is 25 plus 144. That is 169. From 1 and 2. 13 square equal to
5 square plus 12 square. 13 square is 169, and 5 square plus 12 square is also 169. So 13 square equal to 5 square plus 12 square for using the converse of this. Therefore, by converse of Pythagoras theorem, we can say 5, 12, 13 is Pythagoras triplet. Now fourth, 24, 70, 74. यहाँ थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करो और बाकी के 3 खुद सॉल्व करो, वापस वीडियो सॉल्व करो. 24, 70 and 74. तो 74 the biggest value का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कैसे निकालें मैं आपको बता रहा हूँ. 4 स्क्वायर कितना है? 4 4 16, तो 6 लिखो. 1 क्यों? 7 4 इसको मल्टीप्लाई करो. 7 4 28, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो. 28 2 56, 56 plus 1 57, 7 5. 7 का स्क्वायर करो. 7 7 49, 49 plus 5. अब नेक्स्ट 2 वैल्यूज हैं. 24 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर. मैंने कैसे किया इसको वापस बता रहा हूँ. 4 का स्क्वायर 16, 1 कैरी. 4 2 8, 8 इनको मल्टीप्लाई करो इंटू 2. 4 2 8, 8 2 16 plus 1 17, 1 carry. 2 2 4 plus 1 5 plus 7 7 49. So 4900, 576. तो आता है 6 7 5. 5 4 7 6 is equation 2. So what we can say, therefore from 1 and 2, 74 square equal to 24 square plus 70 square. Therefore, by converse of Pythagoras theorem, क्या वैल्यू सही है? 24 70 and 74. 24 70 74 is Pythagoras triplet. Now go to 5th. 5th देखो 10, 24 and 27. तो 27 का स्क्वायर 7 7 49, 4 carry. 7 2 14, 14 28, 28 plus 4 32. 2 2 4 plus 3 7. 10 square plus 24 square. 10 square is 100. 24 square अभी हमने ये देखा था 576. So ये आपको मिलता है 676. You can see since 27 square not equal to 10 square plus 24 square, therefore क्या क्वेश्चन? हाँ 10 24 and 27. 10 24 27
is not Pythagoras triplet. Solution 11, 60, 61. अभी 61 का स्क्वायर लो, 1 का स्क्वायर 1, 6 1 का 6, 6 12, 36 plus 1 30, 11 square plus 60 square. 11 square is 121. 60 square is 30. 6 का square 36 or 0 0. This is 3 7 2 1. Therefore, from 1 and 2, 61 square is 11 square plus 60 square. Therefore, by converse of Pythagoras theorem, (11, 60, 61) is Pythagoras triplet. So we now go to the next question. We'll do 3 questions at a time. 3 questions करेंगे. Question number 2 क्या है? They're given us figure, that is M and P. M and P is a right angle triangle. NQ is altitude to the hypotenuse. In triangle M and P, angle M and P is 90. You can see that they are given us NQ perpendicular MP. MQ is 9, QP is 4, MQ is 9, QP is 4. They ask us to find NQ. Question number 3. Let's see back first. First पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं. Look at the figure carefully and you'll realize that we are going to use geometric mean theorem. Solution. First, we have to show, since we are going to geometric mean theorem, we are going to show this triangle, triangle number 1, similar triangle 2. See, triangle start कैसे करते हैं? यहाँ से ऐसे, और मैं यहाँ से ऐसे.
sorry. So triangle MQN, similar triangle NQP, इसका रीजन है THUR, theorem of right angled triangle and similarity. सर्कल नंबर 2, therefore जो चाहिए वो दो, NQ upon PQ इक्वल टू, हमें ये चाहिए MQ upon MQ, corresponding sides of similar triangles. Therefore, NQ square equal to MQ into PQ. Therefore, NQ square is, NQ कितना है 9 and this is 4. So NQ square is equal to 36. So NQ equal to 6. This is taking square root on both sides. So you got NQ value. Now we go to the next question. Question number 3. They are given us in QPR or PQR, this is P, this is Q, and this is R, this is M. Now let's see given values. PM is 10, QM is 8. You have to find QR. So, in figure or in triangle, you can say, in triangle QPR, angle QPR is 90 degrees. PM is perpendicular QR. Q dash L dash R. PM is equal to 10. QM is equal to 8. Find QR. QR के लिए हमें MR फाइंड करना है and then ऐड करना है. You can use geometric mean theorem, अलग टाइप का वो दोनों, ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल भी ले सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या ये दो छोटे ट्राइंगल लेके MR फाइंड करके एडिशन भी कर सकते हो. आई विल गो फॉर एडिशन सेकंड पार्ट, जो सेकंड सॉल्यूशन में आपको दिया. Theorem. देखो I'll start with this. मैं ऐसे जाऊंगा यहाँ और ये ऐसे. Common 90.
कैसे कर रहा हूँ देखो मैं, हाँ भाई अगर दो इन दो नहीं थे देना ही रफ में ऐसे करके देखने का QPR, ओके QPR देखो मैंने अगर ये ट्राइंगल छोटा ट्राइंगल दिया ना, इट इज स्मॉल ट्राइंगल, सो Q इज अ कॉमन एंगल 90R, कॉमन एंगल 90R, सो यह आएगा QMP सॉरी। और अगर मुझे ये लेना है ना, ओके हमने क्या किया, कॉमन एंगल लेते हैं, कॉमन एंगल 90R, लेकिन हमने और ये यहां से स्टार्ट करना है, अनकॉमन एंगल 90R, अनकॉमन एंगल PMR, देखो QPR PMR, और मैं QMR आता हूँ ट्राइंगल, मुझे QPR नहीं चाहिए, सो आई गो फॉर दिस टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल QMP, सिमिलर ट्राइंगल PMR, ये theorem of similarity and right angled triangle. Second number 2. Now go for corresponding sides. बहुत जरूरी याद रखो, वन ये इस इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वन कॉरेस्पॉन्डेंस इज कंपल्सरी, इसलिए प्रैक्टिस करो, जो अलग अलग फिगर लिख लो, जैसे ये फिगर ले लो कोई भी और देखो, देखते रहो, यू गेट टू लर्न परफेक्टली वेल। देखो ये और ये पहला होगा PM अपॉन RM इक्वल टू ये QM दिया हुआ है, सो QM and PM, so QM upon PM, corresponding sides of similar triangles, therefore PM square equal to QM into QR, sorry, into RM, yeah, MR. QM दिया हुआ है 10 स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी PM दिया हुआ है 8 into MR, so there is 100 equal to 8 into MR. So MR equal to 100 upon 8, 4 2s are 8, 4 25 are 25 divided by 2 कितना आता है 12.5, so MR is 12.5 units. Step number 3, हमें MR नहीं चाहिए, हमें QR चाहिए, therefore QR equal to QM plus MR, reason है Q dash M dash R, therefore QM is 8 and MR is 12.5, so QR value is 20.5 units. Third question. This is third question. Now go to fourth question. Sorry.
See, they have given us a triangle, very interesting question. PSR this is 30 degrees, this is 90, so this will be 60 on remember. From the information given in PSR, find RP, and PS. Solution. In triangle PSR, angle P equal to 30 degrees and angle PSR is equal to 90 degrees. This is given. Step number 2. Therefore, angle PRS equal to 60 degrees. Reason from इसका रीजन क्या है? फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 एंड सम ऑफ मेजर्स of angles of triangle is 180 degrees. So now we know this is 60. So स्टेटमेंट नंबर 3 हमें क्या फाइंड करना है? RP. ये है, पहले RS निकालेंगे, PS निकालेंगे और पाइथागोरस से निकालेंगे. Now SR equal तो कुछ तो हमें वैल्यू दी होगी ना. They must have given one more value. अच्छा 6 दिया हुआ. This is 6. 6 दिया हुआ है तो हमें इसकी जरूरत नहीं. See, there is one way. There is one way of getting. ये मेथड से भी कर सकते हो because side opposite इससे ये मिलेगा और चलो वही इस्तेमाल करते हैं. क्यों इरेज करेंगे? देखो SR इक्वल टू हाफ ऑफ इंटू हाइपोटेन्यूज PR. Property of 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. For that, we prove this triangle is 36, 90. Therefore, this 6 is equal to 1 upon 2 into PR. So, PR equal to 12 units. Fourth. What is SP or PS? PS is side opposite 60, देखो, angle 60. It is √3 upon 2 into hypotenuse PR. Again, property of 30, 60, 90 degree. Therefore, PS is equal to √3 upon 2 into hypotenuse. Just now we found out 12. So PS will be 2 and 2 6 √3 units. Okay, now we are going to start with practice set 2.1, fifth question. See what is given to you. The given us in triangle ABC, side AB and side BC are equal. If these two sides are equal, that means this triangle is an isosceles triangle, but an isosceles right angle triangle. So this will be 45, 45 and this will be 90 degrees. So let us start. This is an activity, so you have to fill in the blanks, okay? So AB equal to BC, this is given. Angle BAC
equal to 90 degrees. Therefore, this triangle is 45, 45, 90. So, AB equal to BC equal to 1 upon root 2 into AC. So, this will be 1 upon root 2 into root 8. So, this will come to 1 upon root 2 into 2 root 2. You'll ask me, sir, how you got this? See, root 8 is nothing but root 4 into root 2. That is root 4 into root 2. That is 2 root 2. 4 is a perfect square. So, square root of 4 is 2. So, this you cancel out, answer is 2. So, question number 5 gets over. We go to question number 6. This is a very easy question, in fact. This. Now, before we go to question number 7, we go to question number 6. And what does the question number 6 say? Find the side and perimeter of a square whose diagonal is 10. Suppose this is question number 6 we are in. We draw a square and this diagonal of a square is 10 centimeters. Yes, we given this in centimeters. 10 centimeters. Suppose quadrilateral is PQRS. We have to find these sides. We have to find the side, length of the sides, and then perimeter of a square. Perimeter means, sum of all sides. So, let us start solution first. Let quadrilateral PQRS be the required square. This is our supposition. This is our supposition. Some people use the word hypothesis. Okay, supposition of the simple English is better. Now, next is angle PQR 90 degree. Each angle of square is 90 degrees. We know it. Serpent number 2, serpent number 3. Therefore, PQ equal to QR. Reason: sides of square are congruent. Statement number 4. Therefore, triangle PQR is 45 degrees, 90 degree triangle.
from statement 2, from statement 2, statement 3, and sum of measures of angles of triangle is 180 degrees. Statement number 5. Therefore, PQ. What is PQ? PQ will be 1 upon root 2 into, डायरेक्टली नहीं करना है अपने को, 1 upon root 2 into PR. 1 upon root 2 into PR. Reason? Property of 45, 45, 90 triangle. This is 1 upon root 2 into 10. I am now going to do it here. So PQ, what will be PQ? Now I wouldn't want this to. हमने 9th में किया था rationalizing the denominator. देखो ये है root 2 is irrational number. इसको rationalize करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये root 2 है ना, तो multiply और divide by root 2. ये हमने rational numbers में ख्याल से 3rd या 4th chapter, 3rd या 4th chapter होगा शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, algebra का उसमें किया था. So rationalizing denominator करो, so 1 upon root 2 into 10 into root 2 upon root 2. तो ये क्या होगा, 1 upon 2 into 10 into root 2. ये root 2 into root 2 2 हो गया, तो ये irrational का rationalize हो गया. 2 ones are 2 5s are. So what is PQ? PQ is 5 root 2 centimeters. अगर PQ 5 root 2 है तो all the sides of a square is same, 5 root 2. Therefore, perimeter of square is 4 into side, that is 4 into PQ. 4 into 5 root 2 is 20 root 2 cm. ये आपका आंसर आ गया, perimeter of a square. So question number 6 gets completed. ये question number 6 यहां से यहां तक है. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं. ये जो फिगर है हम लोग ऊपर ले लेते हैं. हेल्प अस. So D, F, G, E. This is 90 and this also is 90. GD is 8 given to you. FG is 12. Okay. So given question number 7. In triangle DEF, angle DFE equal to 90 degrees given to you. FG is perpendicular DE
GD equal to 8, FG is equal to 12, find 1, that is EG, second FD, third EF. Look at this question number 7. Triangle DEF is given to you. Angle DFE is 90. So FG is perpendicular to DE, GD 8, FG 12. ये फिगर देख के याद आता है थियरम ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एंड थियरम ऑफ सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल. चलो स्टार्ट करो. सॉल्यूशन स्टेटमेंट 1. हमें ये फाइंड करना है, तो ये दो ट्राइंगल्स प्रूव करेंगे. तो इसका मैंने आपको कहा था, आई टोल्ड यू प्लीज बी केयरफुल अबाउट 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉपरली लो. तो हम इसको कैसे लेते हैं, वापस एक बार प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हम आप लोग क्या करो, घर पे एक ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ करो इस प्रकार का, और अलग अलग अल्फाबेट्स लिखो, और 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मैंने जो कहा ऐसे प्रैक्टिस करो, बहुत ज़रूरी है इसमें. देखो हम लोग पहले लेते हैं DEF, DFE ट्राइंगल लेते हैं. DFE ये 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है ऑफ अ मदर ट्राइंगल, जो ओरिजिनल बड़ा ट्राइंगल है. अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूं तो D, देखो D ये कॉमन है, F90 है और E अनकॉमन. सो ये जब कॉमन सेंस लगा तो DGF आएगा, DGF. अब जब ये लेंगे तो हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम कॉमन. देखो इसमें कॉमन ये एंगल था, ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल में. तो वी स्टार्ट विथ अगेन, यहां से चालू करोगे तो कॉमन एंगल ये आएगा EGF, DF अगेन. अच्छा ये अनकॉमन एंगल ये DF, ये इन दो ट्राइंगल में हमें यार स्टार्ट विथ DFE. सो ये अनकॉमन इन दोनों में, अभी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में ये कॉमन है. ओके सो लेकिन हमें स्टार्टिंग विथ D जाना है ये ओरिजिनल में. सो ये यहाँ इस ट्राइंगल का ये अनकॉमन होगा 90 और कॉमन, तो ये आएगा FGE, अनकॉमन 90 एंड कॉमन FGE. ध्यान से देखो ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मिल गया. अभी हमें यहां लिखना है ट्राइंगल DGF सिमिलर ट्राइंगल FGE. इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मेरे रेफरेंस के लिए आता ओरिजिनल ट्राइंगल. ये दो ट्राइंगल हमने प्रूव कर दिए. रीजन थियरम ऑफ सिमिलैरिटी एंड थियरम ऑफ सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल्ड ट्राइंगल. सेगमेंट नंबर 2 पे जाते हैं, और अभी 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लो तो लेट की इनफैक्ट लेने की जरूरत नहीं है, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी सीधा ले लो. तो ये होगा दिस अपॉन दिस, GF अपॉन GE, ये और ये DG GD अपॉन GF.
sides of similar triangles. Therefore, GF square GD into G, GF कितना है 12 the whole square, GD is 8 into GE, so 144 equal to 8 into GE. आप लोग ये सर 144 क्यों लिया? 144 आपको नहीं लेना है तो 12 into 12 रखो, डिवीजन के लिए आसानी होगी. 12 into 12 ही रखो, आसान होगा. Therefore, GE will be 12 into 12 upon, इसको 4 है ना, इसको स्प्लिट करो, 4 2 जा, तो 4 3 जा 12, 2 6 जा, तो GE is 18 यूनिट्स. सेंटीमीटर्स कुछ दिए हैं उन्होंने? नहीं, यूनिट से, तो यूनिट से लिखो. तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड. एक बार हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया तो रिमेनिंग पार्ट हमें, यू कैन यूज दिस ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी, नहीं तो पाइथागोरस से कर लो. स्टेप नंबर 3, ये अपना G कितना आ गया अभी 18 आ गया, तो यू कैन यूज यूजिंग पाइथागोरस. इन ट्राइंगल FGE angle FGE is equal to 90 degrees given FG perpendicular DE. Step number 4, Pythagoras theorem. Therefore, EF square equal to GE या EG square ये G के बल EG और कुछ नहीं, EG स्क्वायर प्लस हमें GF दिए ना या FG दिया है, FG स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम पूरा वर्ड्स में लिखो. देयरफॉर EF कितना है फाइंड करना है. EG is 18 square plus FG is 12 square. 324 plus 144. 324 plus 144. 8 6 4. इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे. Therefore, EF square is equal to 468. इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? फाइंड फैक्टर्स. 468 2 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा नहीं 2 4 जा 8 सॉरी 144 324 2 आपस 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 7 जा 14 13 9 3 लेते हैं 3 3 जा 9 3 9 जा 27 3 13 जा. So it will be square root of, when you go for square root, it will be 4 into 9 into 13. So this will be 2 into 3 root 13. So ये क्या होगा? Therefore EF will be 6 root 13 units, taking
square root on both sides. अभी फिफ्थ पे जाते हैं. We want to find FD. Therefore, in triangle FDE, FGD, angle FGD is 90 degrees from given, because FD perpendicular to ED. Statement number 6. पाइथागोरस का इस्तेमाल करो सिर्फ FD स्क्वायर. ये therefore FD square is equal to GD square plus FG square. Pythagoras theorem. Therefore FD square कितना होगा? GD is 8 square plus 12 square. This is 64 plus 144. वन 44 plus 64 कितना हो गया है? 8, 10, 208. 208 के फैक्टर्स निकालो. देखो FD स्क्वायर equal to 208. Therefore, what will be FD? It will be square root of 208. 208 का फैक्टर्स और फिर 2. 2 1 are 2, 0, 2, 4 side. 2 5 are 10, 2 2s are 4. 2 2s are 4, 2 6 are 12. 2 13s are. So this will be 4 into 4 into 13. So this will be क्या होगा ये? 2 into 2 into root 13. So this will be 4 root 13 units FD. FD मिल गया. तीनों मिल गया. All the three sides we got. Question number 7 gets completed here. We now go to question number 8. And then we go to this. Question number 8. Question number 8 क्या दिया है पढ़ो. Find the diagonal of a rectangle, okay, whose length is 35 centimeters and breadth is 12. Length is 35 and breadth is 12 centimeter. अब रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं. ये डायगोनल है. You have to find the length of a diagonal. ओके, उसका जो लेंथ एंड ब्रेथ दिया है रेक्टेंगल का, दिस लेंथ इज 35 and breadth is 12. Length is 35, breadth is 12. Suppose if I consider this as PQ RS. You have to find PR. स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. Let quadrilateral PQ RS be the required rectangle. ये है अपना सपोजिशन.
सपोजिशन, वी आर सपोजिंग, क्योंकि उन्होंने अपने को, दे आर नॉट गिवन अस रेक्टेंगल, कोई फिगर नहीं दी है, हमें खुद फिगर लेनी है, उस फिगर को नेमिंग करना है और बाद में वो लेंथ एंड ब्रेथ मेंशन करना है उस फिगर के अंदर। हेंस आई टेक अ सपोजिशन कि जो गिवन रेक्टेंगल है उसको हम मान लेते हैं, वी एज्यूम इट दैट इट इज क्वाड्रिलेटरल और रेक्टेंगल PQRS। ओके, सो लेट अस, ये पहला क्वेश्चन सेटमेंट था। सेकेंड सेटमेंट विल बी देयरफॉर angle PQR equal to 90 degrees and PQ equal to 12 centimeters, QR equal to 35 centimeters। ये सब हम सपोजिशन में ही ले लेते हैं, सपोजिशन एंड गिवन में वैल्यूज गिवन नहीं है, 12 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, और हमने ये सपोज किया है। सेटमेंट नंबर 2, देयरफॉर इन ट्रायंगल PQR ये नहीं किया तो भी चलेगा, वो यहां मेंशन करते हैं हम लोग। And PQ is 12 centimeter, QR is 35 centimeters। ओके, यहां मेंशन करते हैं अभी, इन ट्रायंगल PQR, एंगल PQR equal to 90 degrees, each angle of rectangle is 90 degrees। Statement number 3, therefore PR square is equal to PQ square plus QR square। This is right angle triangle, so it's Pythagoras theorem। Substitute the values, we have to find PR square, so what will be PQ? It will be 12 the whole square and QR will be 35 the whole square। Therefore PR square क्या होगा? 144 प्लस, अभी मैं आपको शॉर्टकट बोलता हूँ, 35 का स्क्वायर के लिए मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले कहा था, मैंने क्वेश्चन आपको, देखो ये 35 है, मैंने आपको पहले मेरे ख्याल से पहले कुछ क्वेश्चन में बताया था हाउ टू गेट द स्क्वायर। देखो 35 है ना, ये ओनली टिपिकल, अभी ध्यान से सुनो, 35 का स्क्वायर लेना है, 25 का स्क्वायर लेना है, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर ऑफ अ नंबर जिसका यूनिट प्लेस 5 है, यूनिट प्लेस 5 है, मैं 2 डिजिट नंबर के बारे में बता रहा हूँ, दिस इज एप्लीकेबल फॉर इवन 3 डिजिट नंबर एंड सो ऑन, बट वो अलग हो जाएगा। सिर्फ अभी 2 डिजिट नंबर लेते हैं, अप टू 99, दैट इज 35 है, 35 का ये 35 है, तो 35 का यूनिट प्लेस क्या है? 5। हाँ, यूनिट प्लेस 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर कितना है, तो हमें किस तरह से डिवाइड करना है। देखो ये 35 को शैडो आ रहा है, बस एक अब भी आएगा थोड़ा सा। ओके, 35 है, तो इसको ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, तो यूनिट प्लेस का स्क्वायर लो, 5 5 25, 5 लिख लो, 2 कैरी दिमाग में रख दो, नहीं तो सीधा 5 5 25 सीधा लिख दो, 5 5 25, यूनिट प्लेस का मैंने क्या किया? स्क्वायर, 5 5 25, और 3 के आगे का नंबर क्या है? 3 + 1 करो 4, तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 4 × 12, यह आएगा आपका
1225, ये आएगा आपका स्क्वायर ऑफ 35. सेम वे वी कैन टेक 45, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 के आगे का नंबर है 5, तो 4 5 20. 55 का स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा, 5 5 25, 5 6 30 एंड सो ऑन. Therefore PR square, तो ये आपका है 1225 प्लस 144, या तो 9631, 1369. अब 1369 का परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट 1369. So start with 3, start with 3 4 नहीं, यहाँ नीचे सॉरी, 3 4 12, 3 5 3 नहीं आ रहा है. चलो एक दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं. अगर आपको एक अलग शॉर्टकट देता हूँ, देखो आपने कोई इधर टेबल फैक्टर निकालने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, प्राइम नंबर तो ना हो, ये देखने के लिए. देखो ये जो नंबर है इसका नियरेस्ट जो है इन टर्म्स ऑफ 10th, ओके, तो 40 का जो स्क्वायर लोगे ना तो ये होगा 1600. सो 1600 इज ग्रेटर, सो ये लेस देन, ये होगा 1369. तो ये 40 का स्क्वायर है, याद रखो. दिस विल बी लेस देन, ये हमें फाइंड करना है, एंड दिस विल बी लेस देन ये 40 है ना, 3 3 900, मतलब ये 30 का स्क्वायर. तो 30 और 40 के बीच में ये है, ओके. और ये नंबर, ये डिजिट कौन सा है, 9. इसका मतलब इसके दो ही परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, अगर हो दोनों में से एक, मतलब नहीं तो हो नहीं सकता, तो प्रॉब्लम है. मेरे प्राइम नंबर है, ये होगा 33, बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 और 37, 7 का स्क्वायर 49, याद रखो. तो 30, इसका देखते हैं स्क्वायर, 33 का स्क्वायर क्या होगा. अब इस टाइप का स्क्वायर का कैसे करें, हाउ टू डू स्क्वायर ऑफ 5 तो है नहीं सर, अभी इसको फटाफट कैसे करें. अगर 5 नहीं हो तो अदर देन 5, मतलब यूनिट प्लेस अगर 5 नहीं हो, यूनिट प्लेस एनीथिंग फ्रॉम 1 to 9, 0 तो आप जानते हो, 1 to 9 हो 5 छोड़ के, तो कैसे करेंगे. ये जो यूनिट प्लेस है उसको स्क्वायर करो, 3 3 9, ओके. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 9 2 18, 8 लिखो, 1 कैरी. और इसको 3, ये जो है ना नेक्स्ट 10th प्लेस, इसको स्क्वायर करो, 3 3 9 प्लस 1 10, ये आता है 1089. तो 33 नहीं है. अभी 37 का स्क्वायर लेते हैं, सेम मेथड, 7 7 49, 4 कैरी, यहाँ कैरी है 4, याद रखो. 7 3 7 3 21, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 42, 42 को 4 ऐड करो, 42 प्लस 4 46, 6 4 कैरी. 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13, मिल गया. ओके, शॉर्टकट. सो 1369, therefore PR equal to square root of 1369. Therefore PR is equal to 37 centimeters. Therefore diagonal of a rectangle is 37 ये इस एग्जाम में आ सकते हैं, तो प्रैक्टिस करो इसको घर में, मतलब अभी इस वक्त नहीं, फ्री हो जाओगे, वीडियो खत्म हो जाएगा, मतलब ये आप लोग जो एट प्रेजेंट आज जो पढ़ाई कर रहे हो, अभी जो पढ़ाई करो तुम लोग कर रहे हो, उसके बाद जब फ्री टाइम होगा तो कोई भी नंबर दे लो,
90 2 डिजिट नंबर ले लो कोई भी, 8 + 5 का टेक्निक अलग मैंने बताया, उससे ट्राई करो, स्टार्ट करो एकदम 15 से लेके 95 तक। और ये जो टेक्निक मैंने आपको दी है अभी, ये टेक्निक का इस्तेमाल करो फ्रॉम एनी नंबर 2 डिजिट नंबर, दैट इज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 11 टू 99, कोई भी नंबर ले लो, प्रैक्टिस करो, 5-6 दिन प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट आ जाएगा। We complete this, now we go to question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 यही कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, दे गिवन अस अ ट्राइंगल, जैसे PQR ट्राइंगल है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ दिया हुआ है, angle PRQ is 90, so okay, angle PRQ is 90 given, so we have to find, मतलब ये दो ट्राइंगल राइट एंगल मिल रहे हैं हमें, PRQ and PRM, both right angle triangles, okay, and we have to find PQ square equal to PM square minus, 4 times PM square minus 3 times PR square। तो आपको थोड़ा आइडिया तो आ गया होगा, ओके, कि हमें ये क्या लेना है। मैं यहाँ इसको पहले इनिशियल जो पार्ट है वो पाइथागोरस, इनफैक्ट पाइथागोरस से ही प्रूव करने की कोशिश करूंगा। सम पीपल मे टेक एपोलोनियस, कुछ लोग एपोलोनियस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एपोलोनियस का इस्तेमाल करने के बाद भी आपको पाइथागोरस का इस्तेमाल करना ही होगा। तो मैं सीधा पाइथागोरस से ही इसको प्रूव करूंगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हम पहला लेते हैं ट्राइंगल पी, ओके, RM equal to MQ equal to half RQ. Reason point M is midpoint of RQ. देखो उन्होंने M इज मिड पॉइंट ऑफ RQ दिया हुआ है, तो इसका इस्तेमाल मैंने पहले कर दिया, स्टार्टिंग में ही करना है, बाद में नहीं। ओके, तो बाद में करोगे तो क्या होगा, वो लिंक टूट जाती है प्रूफ की। तो पहला हो गया। अब सेकेंड, अब देखो हिंट जो होती है ना, हिंट आपको क्वेश्चन में मिल जाती है। ओके, जैसे ये क्या दिया है, देखो PQ स्क्वायर, तो हमें ये PQ इज अ बिगर राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमें PRQ लेना, इन ट्राइंगल PRQ, इन ट्राइंगल PRQ, इन ट्राइंगल PRQ पाइथागोरस क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगे तो क्या होगा आप जानते हो। देयरफॉर 90 लिखता हूं, आई नॉट राइटिंग 90, आप जानते हो दिया हुआ है वहां। सो PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। रीजन क्या है, मैं ऐसा लिखता हूं इसलिए लिखो बता, पूरे वर्ड्स में इसको लिखो, कंप्लीट इनकम्प्लीट वर्ड्स। स्टेटमेंट नंबर 3 देखो, ये लिखता हूं और मैं रुक जाता हूं, क्योंकि हमें देखो हमें PM भी चाहिए, और PM इज अ hypotenuse of right angle triangle PRM, तो अभी मैं I start with that, in triangle PRM, PM square equal to PR square plus RM square। ये भी आप जानते हो क्या है, दिस ऑल्सो इज, अच्छा ये मैं ऐसा लिखता हूं, ऐसा लिखूं मत, पूरे वर्ड्स में पाइथागोरस थ्योरम लिखो। ओके, देयरफॉर स्टेटमेंट नंबर 4
therefore pm square equal to pr square plus, ये देखो क्या लिखा है मैंने, ये rm लिखा है ना, rm इज इक्वल टू क्या है, हाफ आर क्यू, तो वो यहां लिख दो, rm के बदले आर क्यू अपॉन 2 द होल स्क्वायर, रीजन फ्रॉम स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 3। ये स्टेटमेंट नंबर 1 का जो वैल्यू है मैंने ये स्टेटमेंट नंबर 3 में डाला है। ओके, वी गेट दिस वन, इसको ओपन करो, सो वी गेट पी एम स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, सॉरी प्लस आर क्यू स्क्वायर अपॉन 4। सिंपल, मैंने इसको ओपन कर दिया। अब क्या करना है आप जानते हो, मल्टीप्लाई। तो मुझे 4 pm मिल गया, देखो 4 pm स्क्वायर, 4 pm स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, ना 4 सॉरी, इक्वल टू 4 पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। प्रॉब्लम कहां आ रहा है, यहां 4 पी आर मेरा है और यहां मेरा क्या है 3 पी आर, यहां पॉजिटिव है और नेगेटिव, इसका मतलब मुझे इसको यहां लेके आना है, राइट। तो मैं 4 क्यों लेके आऊं, मैं 3 लेके आता हूं इस साइड, एक वहीं रख देता हूं, therefore I get 4 pm स्क्वायर। आपको नहीं समझ, अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक स्टेप और लिखता हूं उसके बाद। मैं लिख रहा हूं यहां 3pr स्क्वायर प्लस pr स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। क्या किया देखो, मैंने ये जो 4 है उसको मैंने स्प्लिट किया एज पर माई रिक्वायरमेंट, 3pr प्लस 1pr, इसको ऐड करोगे तो ये 4pr आएगा। ओके, अब ये क्या है देखो, दिस इज नथिंग बट pq स्क्वायर, स्टेटमेंट नंबर 5, therefore 4pm स्क्वायर इक्वल टू 3pr स्क्वायर प्लस pq स्क्वायर, ये आएगा फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट 4 प्लस, अब ये जो 3pr स्क्वायर उसको इस साइड लेके जाओ, लेफ्ट हैंड पे लेके आओ, therefore we get 4pm स्क्वायर minus 3pr square equal to pq square, and that's all. Therefore pq square जो चाहिए हमें मिल गया, 4pm square minus 3pr, ये है अपना फाइनल आंसर। अभी लास्ट क्वेश्चन हमें करना है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2.1 प्रैक्टिस सेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स या 2 मार्क्स। 2 मार्क्स को भी ज्यादा ही आएगा, 3 मार्क्स का आ सकता है। Now let's read the question. Question number 10 जो अपना है, जो पढ़ लेते हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने क्या है, विड्थ का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द 2 रोड्स। ओके, विड्थ ऑफ 2 बिल्डिंग, अच्छा 2 बिल्डिंग है, बिल्डिंग 2 बिल्डिंग्स है और बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। अच्छा, मतलब अपने को विड्थ ऑफ द स्ट्रीट फाइंड करना है। are parallel to each other, a ladder of 5.8, मतलब लेंथ ऑफ अ लैडर, जो लंबी सीढ़ी होती है ना, वो लेंथ ऑफ अ लैडर इज 5.8 meters long, is placed on the street such that its top reaches the window of a building of height 4 meters। अगर वो इस तरह से रखी, बीच में नहीं रखी है उन्होंने, बीच में नहीं कहा, ऐसे रखा। अच्छा, I'll tell you, फिगर ड्रॉ करते हैं। उन्होंने कहा कि ये देखो, ये है आपका रोड और ये है
दो बिल्डिंग है, रोड और दो बिल्डिंग है। एक लैडर है वो ऐसा बीच में नहीं है, कहीं भी हो सकता है, तो शायद कहीं यहाँ होगा, क्योंकि ये जो कम ये जो देखो ये ज्यादा नीचे है, इसलिए वो जरा लैडर उस साइड जाएगा, और ये ऐसा किया है तो इसलिए इसका लेंथ कम होगा, यहाँ लेंथ कम होगा, यहाँ ज्यादा होगा। ओके, सो ये है आपका लेंथ ऑफ अ लैडर। लेंथ ऑफ लैडर इज 5.8, ये यहाँ भी 5.8 है, यहाँ भी 5। लेंथ ऑफ अ लैडर इज नॉट गोइंग टू चेंज, सिर्फ वो उसको जो करीब देखो, मैंने ये है ना, ये ऐसा है, जितना मैं करीब जाता हूं ये पेन का जो हाइट है वो बढ़ जाता है ऑन द वॉल। ओके, जितना मैं दूर जाऊंगा वो ऐसा सा कम हो जाएगा, वैसे है वो। तो लेंथ ऑफ अ लैडर रिमेन्स सेम। यहां वो 4 मीटर है, 4 मीटर ही नहीं कर सकते। ओके, ये 4 मीटर जाता और ये 4.2 और ये 8 मीटर। हमें ये फाइंड करना है। सो लेट अस कॉल ए बी सी डी ई। ये है आपका फिगर। हमें फाइंड करना है बीडी, विड्थ ऑफ द रोड। अभी ध्यान से वापस समझाता हूं। दीज आर द टू बिल्डिंग्स ए बी एंड ई डी। ये ऑफकोर्स बिल्डिंग बड़ी है, ये भी बिल्डिंग बड़ी है, लेकिन ये दो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के बीच में एक रोड है, इसका हमें विड्थ निकालना है। मीन्स वी हैव टू फाइंड बीडी ओनली। अब हमने एक लैडर लिया, उसकी हाइट है और उसकी लेंथ है, हाइट नहीं, उसकी लेंथ है 5.8 मीटर। अब मैंने उसको इस रोड पे ऐसे प्लेस किया है, इस तरह से प्लेस किया, बीच में नहीं, कहीं भी, ताकि अगर मैं इस साइड घुमाऊं, इफ आई बेंड इट ऑन दिस साइड, इट रीचेज द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग। यहां बहुत सारी विंडो होंगी, एक विंडो पे से जा रहा है, वो पॉइंट ए है, ये ए विंडो पे है। और अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो वो विंडो की हाइट 4 मीटर है। और अगर मैं लैडर को उस साइड लेके जाऊं, क्योंकि ये लेंथ कम है, ये लेंथ बढ़ जाएगा। सो इट विल फॉल ऑन द विंडो ऑफ अदर बिल्डिंग, टच होगा, विच इज ऑफ हाइट ऑफ 4.2 मीटर्स। ये अपना, अब ये जो हमने अभी मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है, डायमेंशंस जो एक्सप्लेन किए हैं, वो क्या है वो हमें यहां बताना है। ओके, क्योंकि अपने को फिगर विगर नहीं दिया है, दे गिव अस ओनली द स्टोरी। वो स्टोरी का हमें कन्वर्ट करना है फिगर में, और भी कन्वर्ट यहां लिखना है सॉल्यूशन। लेट AC equal to EC equal to 5.8 meter, B length of ladder, AB equal to 4 meter, be the height of window. क्या यूज किया उन्होंने वर्ड? A ladder placed on a street such that the top just reaches the window of the building at a height. The height where height of a window, TOU, touched by the top of ladder on one building.
4 cm will be the height of a window touched by the top of a ladder on one building. ED equal to 4.2 be the height of a window touched by the ladder, by the top of ladder on other building. एंड लास्ट है BD width of road equal to distance between two buildings. ये सब जो है ना, ये क्या है? सपोजिशन. हमने इसको सपोजिशन लिए. सेगमेंट नंबर 1. नाउ वी स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स. बहुत आसान है, ये पाइथागोरस से होगा. देखो, therefore एंगल ABC equal to angle EDC equal to 90 degrees. Both buildings are perpendicular to the ground. याद रखो, बिल्डिंग ऐसे इंक्लाइन नहीं होती. बिल्डिंग इंक्लाइन होगी तो मतलब गए लोग अंदर के. बिल्डिंग एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होती है. ओके, स्टैंड टू द ग्राउंड. Segment number 3. Therefore, in triangle ABC, AC square equal to AB square plus BC square. ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम. हमें शायद यहाँ इस्तेमाल करना पड़े, ये इस्तेमाल करना पड़े, इसलिए मैंने शायद हमें इसका इस्तेमाल करना पड़े, इसलिए मैंने इसको पार्टीशन कर दिया. Therefore AC कितना है भाई? 5.8 the whole square equal to AB square. नहीं, AB तो 4 दिया है ना. AB is 4 square plus BC square. अब जरा को ध्यान दो. नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं? बच्चे जनरली इसका स्क्वायर कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वापस स्क्वायर रूट फाइंड करने जाएंगे. जरा डिफिकल्ट है. उससे क्या होगा? डिफिकल्ट. कुछ बच्चे आसानी से कर लेते हैं सक्सेसफुली, लेकिन ये करने में टाइम जाता है, वेस्टेज ऑफ टाइम. और एग्जाम में हमें ऐसी टेक्निक्स ढूंढनी पड़ती है जिससे टाइम, वो एफिशिएंसी होती है. देखो, एक होता है गधा, एक होता है घोड़ा. दोनों एक ही मेहनत करते हैं भागने का कैरेज लेके, लेकिन घोड़ा ज़्यादा वो एफिशिएंटली काम करता है, गधा नहीं. तो हमें गधा मजदूरी नहीं करनी, हमें घोड़े से दिमाग काम करना है, लेकिन मेहनत तो करनी है, लेकिन दिमाग भी लगाना है. सिर्फ गधे से मेहनत करते विदाउट एमलेसली जाना नहीं है, कहीं भी घुसना नहीं है. राइट? इसलिए वो गधे की गाड़ी जो होती है ना, वो भागती नहीं है, वो धीमे धीमे चलती रहती है, क्योंकि वो गधा इज गधा बहुत इंटेलिजेंट एनिमल है. मैं किसी भी जानवर को ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक कहावतें हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको. सो वी हैव टू यूज आवर ब्रेन व्हाइल सॉल्विंग इट. ओके, चलो. Therefore BC square equal to 5.8 the whole square minus 4 square. ये याद है, आइडेंटिटीज में हमने किया था. A square माइनस B square इज क्या? A प्लस B. A माइनस B. कितने फास्ट आ जाएगा देखो. तो ये हो जाएगा BC square will be 5.8 minus 4 and 5.8 plus 4. तो BC square आएगा, ये आएगा 1.8 into, और ये आएगा 9.8.
यहाँ तक तो पहुंच गए। अब बोलोगे सर यहाँ तो पहुंच गए, अभी तो हमें निकालना ही पड़ेगा स्क्वायर रूट। नहीं नहीं निकालना है, और एक टेक्निक बताता हूं, शॉर्टकट। देखो ये BC स्क्वायर है, ये 18 मतलब 1.8। अगर मुझे इसको यहां से पॉइंट निकालना है, सी 1.8, इसको 1 पॉइंट मुझे निकालना है, तो आई विल डू, आई मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10, तो ये आएगा 18/10 और ये होगा 9.8। तो मुझे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10 करूंगा तो ये होगा 98/10। सो अभी 18 इंटू 98/10 इंटू 10 ये हो जाएगा। तो मैं क्या लिखता हूं इसको, ये 18 इंटू 98/100 आ गया। अब ध्यान से दो, therefore इसको मैं फैक्टर्स में कन्वर्ट करता हूं, तो ये होगा 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 49/100। अभी आसान हो गया, देखो ये क्या होगा, therefore BC square will be 9 into 4 into 49/100। therefore BC क्या होगा, स्क्वायर रूट लो, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 49 का स्क्वायर रूट 7/100 का स्क्वायर रूट 10। सो BC क्या होगा, BC विल बी, ये 3 2 6, 6 7 42, 42/10। therefore BC is nothing but 4.2 meters। वो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, यानी कोई जरूरत नहीं, ये मेथड टेक्निकल हो, फटाफट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट, दूसरा ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ये फोर्थ सेगमेंट, in triangle EDC, EC दिया मैंने, so EC square equal to ED square plus CD square, again पाइथागोरस थ्योरम, पूरा लिखो, शॉर्टकट नहीं एग्जाम में। therefore AC is again 5.8 the whole square, यहाँ भी वैसे ही करना है, ये आएगा 4.2 the whole square plus CD the whole square। therefore CD the whole square will be 5.8 the whole square minus 4.2 the whole square। तो ये इसको स्प्लिट करो, ये होगा 5.8 minus 4.2, 5.8 plus 4.2। therefore CD square क्या होगा, 1.6 इंटू ये 10, so CD square equal to 16। therefore CD equal to 4 meters। taking square root on both sides। last, therefore हमें BD फाइंड करना है, therefore BD equal to BC plus CD। BC कितना है, 4.2 plus 4, so it is 8.2 meters। ये आपका आंसर आ गया। फाइनल आंसर वर्ड्स में लिख दो, therefore width of the road is 8.2 meters। ये टेक्निक भूलना नहीं है। टाइम अब देखो, मल्टीप्लाई कर आपको अटक जाओगे, लेकिन ये फटाफट हो जाएगा। अगर कहीं ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो अप्लाई करो।